Hey everyone, I am Karthik Mindra and I am back after a long time with a new video. And today's video is quite different, as in this video I will gonna share with you my experience of learning Gurmukhi language. Specifically, Gurmukhi is a script and Punjabi is a language. Punjabi is written in Gurmukhi script. And in today's video I will gonna share my experience that how I learned Gurmukhi in just one day. Is it possible? Let's see. First question, that why am I learning Punjabi? Yeah, that's a very important question, that why am I learning Punjabi? So first of all, let me clear you one thing, that I am from Punjabi family. I come from Punjabi family and I know how to communicate in Punjabi. But the problem was I wasn't having any idea about Gurmukhi script. I wasn't able to write, read anything in Punjabi. So that was the biggest problem. So I was having interest in learning Gurmukhi script, how Punjabi language works when it comes to reading and writing. So that's the only reason why am I learning Gurmukhi script. Okay, so second point, how many languages do I know? Yeah, this is the very important factor, as because of it I've learned Gurmukhi in just one day. One day means less than 24 hours. Okay, so I can read, write, communicate, understand English, Hindi and Gujarati. So these three languages I can read, write, communicate and understand. So, but when it comes to Punjabi, I was only able to communicate and I was only able to understand it. I wasn't able to read and write it. So I thought to learn language by my own. So that's the reason why I am learning Punjabi. To be specific, Gurmukhi script. To be honest, मैं एक चीज बताना चाहूँगा. I would like to clear one thing, that because I was knowing Hindi and Gujarati, it has helped me a lot in learning Gurmukhi so fast. Because Hindi is written in Devanagari script, Gujarati script is also quite similar. Like I would like to say that 50%, around 50% similar to Devanagari script. So because I was knowing Hindi and Gujarati, I was able to read and write Hindi and Gujarati. तो इसने मुझे बहुत हेल्प की है गुरमुखी स्क्रिप्ट को इतना फास्ट लर्न करने में. Okay, so before giving you introduction of Gurmukhi script, let us see some of the history of Gurmukhi script. So Gurmukhi script was developed by second Sikh Guru in mid 16th century, named Guru Angad Dev Ji. And Gurmukhi script itself means the from Guru's mouth. So Gurmukhi in Hindi means Guru ke mukh se. So in Punjabi also it means same. It's a Sanskrit word and that's why its name is Gurmukhi, because it was developed by second Sikh Guru. Okay, so now let me give you some introduction of Gurmukhi script के कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितनी मात्राएं होती है, क्या क्या होता है, वॉवेल, डायक्रिटिक, सब कुछ. तो बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैंने गुरमुखी को स्टडी करना स्टार्ट किया तो मैंने कॉन्सोनेंट्स पे फर्स्ट फोकस किया था. पहले मैंने कॉन्सोनेंट्स को समझा और बाद में मैंने ये सब वॉवेल्स और जितनी भी मात्राएं होती है इन सब पे मैंने बाद में फोकस किया. बट अगर अभी मैं आपको बात करूँ तो मैं कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स सब की आपको अभी पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूँ. तो बेसिकली गुरमुखी के अंदर 35 मेन कॉन्सोनेंट्स होते हैं और प्लस 6 एडिशनल कॉन्सोनेंट्स होते हैं. देयर आर 35 कॉन्सोनेंट्स, मेन कॉन्सोनेंट्स एंड 6 एडिशनल कॉन्सोनेंट्स इन गुरमुखी स्क्रिप्ट. देयर आर 9 वॉवेल डायक्रिटिक्स. तो 9 वॉवेल डायक्रिटिक्स का मतलब होता है कि मात्रा है, जिन्हें हम हिंदी में मात्रा कहते हैं, पंजाबी में भी मात्रा ही कहते हैं. और प्लस देयर आर 2 नसल साउंड्स, लाइक जो बिंदु होते हैं ना, हम किसी भी वर्ड के ऊपर लगाते हैं नसल साउंड, न टाइप का साउंड देने के लिए, तो वो 2 होती है. प्लस एक और बिंदु टाइप का ही कुछ होता है. अभी मैं अगर आपको अपने शब्दों में समझाऊँ तो वो भी कुछ इस टाइप का होता है. उसको भी आप कुछ आप बिंदु टाइप का ही कुछ ऊपर बोल सकते हैं. वो इसलिए यूज होता है कि कोई भी जो वर्ड होता है उसको थोड़ा डिवाइड करने के लिए, थोड़ा बीच में पॉज साउंड देने के लिए, लाइक थोड़ा शब्द को डिवाइड कर देता है वो, और थोड़ा रुका हुआ साउंड देता है, लाइक टू गिव सम पॉज साउंड. लाइक फॉर एन एग्जांपल आई मस्ट एक्सप्लेन यू दैट आई, like I in Hindi it's known as आँख and in Punjabi it's known as अख. So अख, तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में हम बराबर एकदम आँख बोल रहे हैं, लाइक कॉन्स्टेंट साउंड आ रहा है, बट पंजाबी में हम अख. तो ये आपको डिवाइड कर देता है शब्द को. इट विल गोना डिवाइड वर्ड. सो वन मोर एग्जांपल, लाइक आज, टुडे इज नोन एज आज इन हिंदी एंड इन पंजाबी इज नोन एज अज. तो आप देख सकते हैं जैसे हिंदी में हमने एकदम आज बोला और पंजाबी में हम अज. तो ये साउंड, ये जो वॉवेल आप बोल लो या इसे कुछ बिंदु बोल लो, तो ये इसलिए यूज होता है थोड़ा डिवाइड करने के लिए, वर्ड को डिवाइड करने के लिए. तो ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से पता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जैसे मैंने ये लर्न करते करते जो मैंने ये सीखा समझा, तो मैंने आपको अपने वर्ड्स में समझा दिया. तो एक ये हो गया, और प्लस देयर आर 3 सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर्स.
अच्छा, तो ये सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी कॉन्सोनेंट के अंदर लगाए जाते हैं, नीचे लगाए जाते हैं। लाइक इन्हें हम नीचे लिखते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट में, और ये एडिशनल होते हैं। तो ये जो भी ये सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये 3 टाइप के साउंड करते हैं, एक र, एक ह और एक व। और ये एडिशनल होते हैं, ये कॉन्सोनेंट में एक्स्ट्रा लगाई जाती है, तो ये डुअल साउंड आता है। इतना है इंट्रोडक्शन। दिस मच नॉलेज इज इनफ एज ए बिगिनर। Okay, so my experience of learning Gurmukhi script, it's the most interesting part. ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को समझा। अब देखो, जैसे अगर आप इंटरनेट, क्योंकि मैं सब इंटरनेट से ही पढ़ा, आई हैव लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इंटरनेट अबाउट पंजाबी स्क्रिप्ट, अबाउट स्क्रिप्ट। सो मैंने क्या किया, जब मैंने गुरमुखी के अल्फ़ाबेट्स को देखा, लेटर्स को देखा, तब तो कुछ समझ में आएगा नहीं। बट फिर मैंने क्या किया कि ये तो बहुत सिंपल है, कि उसे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स, लाइक देवनागरी के अल्फ़ाबेट्स के साथ गुरमुखी के अल्फ़ाबेट्स को मैंने कंपेयर किया। इसमें एक डिफरेंस भी है, जैसे गुरमुखी में कॉन्सोनेंट्स को ऐसे बोलेंगे, क को, जैसे जो हिंदी का क है, जो देवनागरी का क है, उसे पंजाबी में हम कक्का, जो हिंदी का ख है उसे पंजाबी में हम खखा। तो कक्का, खक्का, गग्गा ऐसे बोलेंगे। बट जो देवनागरी में उसे हम एज इट इज क, ख, ग, घ, तो ऐसे ही बोलेंगे। बट ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। तो मैंने क्या इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने ये फोकस किया कि जो क है, जो देवनागरी का क है, वो गुरमुखी का क कैसा है, तो जो देवनागरी का ख वो गुरमुखी का ख। तो मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया। आई स्टार्ट कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, एंड इट वॉज द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ड क्या साउंड करता है, कौन सा अल्फ़ाबेट क्या साउंड करता है। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल प्रोसेस था। बट हाँ, अगर आप एक देवनागरी स्क्रिप्ट के वेल नोन है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट इंडिया में रहते हैं, तो बहुत हद तक देवनागरी तक की सब लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट सिमिलर है। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है एक दूसरी स्क्रिप्ट पढ़ना। वो अलग बात है कि असमी और बंगाली स्क्रिप्ट वो काफ़ी अलग है, बट फिर स्टिल वो भी देवनागरी तक ही, वो भी देवनागरी से काफ़ी सिमिलर है। लाइक जैसे हम देखते हैं मात्रा उनमें भी है, और जो बेसिक एक लैंग्वेज का सिस्टम होता है वो सेम है। गुरमुखी का भी देवनागरी से ही सिमिलर है बहुत हद तक। सो फर्स्ट थिंग मैंने यही की थी कि कॉन्सोनेंट्स को समझना स्टार्ट किया था कि कौन सा कॉन्सोनेंट क्या साउंड करता है, कौन सा अक्षर क्या साउंड करता है। तो ये सबसे पहले ये बेसिक चीज़। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप मात्राओं को देख सकते हैं। जैसे अब मात्राएं हिंदी में अगर आप बोलोगे तो बहुत सारी है, अलग अलग है, बट पंजाबी में थोड़ी कम है मात्राएं। बट फिर आप मात्राओं को समझना स्टार्ट कीजिए। जैसे 50% मात्राएं हिंदी और पंजाबी में सिमिलर है, और हाँ, जो दूसरी अलग भी है, बट वो भी कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो अभी पंजाबी में 9 मात्राएं है, तो वो अगर 9 मात्राओं के नाम मुझे कुछ याद है, तो जैसे सबसे पहली तो मुक्ता होती है। मुक्ता मतलब वो कोई मात्रा नहीं है, वो सिर्फ अ साउंड करेगा। तो अगर मैं मात्राओं की बात करूँ पंजाबी में, तो आती है कन्ना। कन्ना मीन्स जो आ की मात्रा, हिंदी में बोलते हैं कन्ना। फिर सिहारी, बिहारी। सिहारी मीन्स जो हम छोटे ई की मात्रा बोलते हैं, फिर बड़े ई की मात्रा बिहारी। ओंकड़, दुलंकड़, लावा, दुलावा, होरा या होड़ा, कन्नोड़ा। तो ये कुछ 9 मात्राएं हैं। और फिर एक है टिपी, एक है बिंदी, और एक है अदक। हाँ, उसे अदक कहते हैं। तो जो मैंने आपको, तो जो वो वाला साउंड, तो जो एक वर्ड को डिवाइड करता है और एक पॉज टाइप का साउंड देता है, तो उस डायक्रिटिक को अदक अदक कहते हैं पंजाबी में। तो पॉज डायक्रिटिक मैंने ऐसे याद रखा था। तो ये कुछ वॉवल डायक्रिटिक्स जिन्हें मात्रा कहते हैं, मात्राएं है पंजाबी की। और फिर इसके बाद जो 3 सबस्क्रिप्ट लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो बस उसकी भी आप थोड़ी आप बस कर लोगे कि जैसे 3 टाइप के साउंड्स हो देते हैं। बस फिर आपको क्या करने का है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया। बस मैंने एक बार कॉन्सोनेंट्स को समझ लिया, मात्राओं को समझ लिया, और जितने भी मिसलिनियस चीज़ें थी इन सबको समझ लिया। उसके बाद मैंने रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट किया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस था कि रीडिंग और राइटिंग। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया था बिना ट्रांसलेशन, और मैंने इंटरनेट पर से ऐसे सेंटेंसेस उठाए पंजाबी के जिसका कोई ट्रांसलेशन था ही नहीं। तो बेसिकली ऐसे कुछ सेंटेंसेस है। तो चलिए मैं आपको अभी कुछ रीड करके दिखाता कोई सेंटेंसेस, थोड़े बहुत, कि आपको ही पता चले कि मुझे कितना आया और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ये तो लर्निंग प्रोसेस है, ये तो चलता ही रहता है, एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। बट हाँ, एक दिन में मैंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर लिया कि मैं बेसिक सेंटेंसेस रीड कर सकता हूँ। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि चाइना ते जापान दे झंडे वखरे हन। बेसिकली इट मीन्स दैट चाइना एंड जापान बोथ हैव डिफरेंट फ्लैग्स। तो हिंदी में कि चाइना और जापान के झंडे अलग अलग है।
और नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैंने गाना गाया, विच मीन्स आई सैंग ए सॉन्ग। और हाँ, अभी आप ये नेक्स्ट देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग है, मैंने जल्दी जल्दी में डाउनलोड कर दिया था, तो ये एक इंटरेस्टिंग है, मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। इसमें लिखा है जापान एंड चाइना हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फ़ाबेट से अपनी गुरमुखी के, बट इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की है वो इंग्लिश है। तो नेक्स्ट स्टेप है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आई सेंग ए सॉन्ग। तो जैसे सेम मीनिंग सेम निकलता है बट लैंग्वेज डिफरेंट है, और स्क्रिप्ट सेम है, मीनिंग सेम है, बट लैंग्वेज अलग है जो अंदर लिखी हुई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो मैं सोचा आपके सामने रीड करना चाहिए। तो चलिए अब मैं कुछ लंबा रीड करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि कृपा करके मैं अंदर आ सकता हा। तो अभी आप ये देखिए, आप कृपा में आप देख सकते हैं वो सबस्क्रिप्ट लेटर यूज़ किया है, जो र साउंड वाला। तो आप ये देख सकते हैं कृपा। और फिर नेक्स्ट स्टेप भी वही है, नेक्स्ट में भी वही लिखा हुआ है कि मैं अंदर आ सकता हा। फिर थर्ड पॉइंट है, लिखा है आओ अथे बैठ जाओ। हाँ, विच मीन्स दैट आओ इधर बैठ जाओ, कम सिट हियर। और फिर फोर्थ में भी यही है कि आओ हाँ अथे बैठ जाओ, तो यही है। फिर नेक्स्ट है हाँ आओ अथे बैठ जाओ, हाँ फिर उसमें भी यही है। फिर नेक्स्ट है, उसमें है नमस्ते सर। और फिर नेक्स्ट में है कि तुअड्डा ना की है, हाँ तो विच मीन्स व्हाट इज़ योर नेम। फिर उसके बाद नमस्ते तुअड्डा ना की है, हाँ तो वो सेम ही है। फिर नेक्स्ट में है मेरा ना योगेश कुमार है, हाँ तो यहाँ लिखा है मेरा नाम योगेश कुमार है। फिर नेक्स्ट है त्वड्डी सिखियक योग्यता की है। तो बेसिकली इट मीन्स दैट तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं कंप्यूटर साइंस अते इंजीनियरिंग विच एम टेक कीती हुई है। कोई एक और मैं पढ़ देता हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस अते इंजीनियरिंग विच एम टेक कीती हुई है, विच मीन्स कि मैंने कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग में एम टेक किया है। तो और फिर नेक्स्ट है कि एम टेक विच तुहाडे प्रतिशत नंबर किन्ने हन, मतलब क्या क्या है एम टेक के अंदर कितने नंबर है। अच्छा, बहुत बार रिपीट किया। फिर उसने रिप्लाई किया कि सर मैं एम टेक विच 77 हाँ तक। देखो अभी आपको फिर वो मिला जो अदक वॉवेल, जो हाँ जो अदक वॉवेल था, जैसे तक। तो ये तक भी क्या करता है, शब्द को थोड़ा डिवाइड कर देता है। तो ये तक अंक हाँ ये फिर आया, देखो वो फिर ये सबस्क्रिप्ट का लेटर आया, जैसे प्राप्त किते हन। तो जैसे सर मैं एम टेक विच 77 तक अंक प्राप्त किते हन। तो और नेक्स्ट है कि तुसी किन्नी तनख्वाह, हाँ तनख्वाह दी उम्मीद रख दे हो। तो आप कितनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मैं घट मीन कम से कम 35,000 रुपया दी उम्मीद रखदा हाँ। तो ये भी आप समझ गए होंगे। फिर है नेक्स्ट असी। ओके, तो अभी लिखा है कि असी तुहानू थोड़े दिना विच सूचित करांगे, मीन्स वी विल गोना इन्फॉर्म यू इन फ्यू डेज। और फिर लास्ट में लिखा है कि क्या लिखा है, हाँ धन्यवाद सर। तो ये था ये कुछ इंटरव्यू हो रहा था, तो ये काफ़ी टफ था। तो इसमें बेसिकली मुझे लगता है कि मोस्टली सारे के सारे वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, डायक्रिटिक्स कवर हो गए होंगे। तो इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस और भी पीटीसी पंजाबी चैनल है, तो आप ऐसे कर करके मैं और मजबूत कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये तो अभी मैंने बेसिक सीखी। सो दिस इज़ हाउ आई एम रीडिंग पंजाबी राइट नाउ। मुझे पता है कि मैं बहुत स्पीड से रीड नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये मेरा इनिशियल टाइम है लैंग्वेज रीड करने का, और ये लैंग्वेज मैं नई सीखा हूँ पहले व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट या इन फ्यूचर आई विल गोना इम्प्रूव माई स्किल्स ऑफ रीडिंग लैंग्वेज फॉर श्योर।
तो ये थे कुछ रैंडम सेंटेंसेस जो मैंने इंटरनेट से लिए थे, और आप देख सकते हैं कि नाउ आई एम एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड रिटन पंजाबी ऑल्सो। तो ये जो भी सेंटेंसेस थे ये मैंने जानबूझ के विदाउट ट्रांसलेशन वाले लिए थे, क्योंकि मैं चेक करना चाहता था अपनी एबिलिटी के मैं कितना प्रोग्रेस किया मैंने। तो ये था मेरा प्रोग्रेस जो आपने अभी देखा। आई कैन रीड एंड आई कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और बहुत और इट वाज अ फन प्रोसेस, और काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी कुछ नया सीखने भी मिला। तो फ्री टाइम में कभी भी आप कुछ नई चीज़ सीखोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बेनिफिटेड है। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और कमेंट करना जैसा भी आपको वीडियो लगा उसके लिए कमेंट करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।